present from the root till the tip of the plant. और जाइलम कैसे पतला सा होता है column, okay? Because it is very very narrow. Can you understand? The water molecules will slowly and steadily move upwards. This is called as capillary force. समझ आ रहा है? अब तुम समझो कि अगर पानी एब्जॉर्ब होता ही जा रहा है, then that water will move where? Into the xylem column upwards, and ultimately it will be transpired by the leaf. I'm using now the word transpired by the leaf, and I hope you get this point. Okay. समझ आ रहा है? Other words में अगर उल्टे से मैं चालू करूँ तो तुमको समझ में आना चाहिए. That is leaf right here. लीफ में से पानी चला गया, लीफ में पानी का कमी हो गया, there is insufficient amount of water present in the leaf. Now this is going to ask to the branch and the stem. तो यहाँ से वो पानी ड्रॉ करेगा. अब पानी कहाँ कम है? यहाँ. अब ये किसके पास मांगेगा? रूट के पास. And hence the root has to continuously absorb the water because continuous transpiration is taking place. समझ आया इतना? Okay, it might be given up in your book somewhere. क्लास में नहीं होगा शायद, पता नहीं. Okay, this is the TS of leaf. ये अगर नींद में दिखाओ तुमको उठा के तुमको आना चाहिए क्या है TS of leaf. And what is meant by TS of leaf first of all? Transverse section. क्या होता है? Transverse section. Transverse section का मतलब if this is a leaf, I have to take a slice like this. ऐसा स्लाइस लूंगी ना तो मुझे उसका अपर लेयर भी दिखेगा, लोअर लेयर भी दिखेगा. एक सैंडविच देखा हुआ है? सैंडविच तो मालूम है कि नहीं? सैंडविच में तुमको क्या दिखता है? एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे और फिलिंग दिखता है ना. ये ऐसा ही कुछ है. कैन यू सी द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस? कैन यू अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दिख रहा है? ओके. अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. नेक्स्ट अप कैन यू सी द वैक्सी क्यूटिकल? इट्स रिटन एज वैक्स क्यूटिकल. इट्स द सेम. ठीक है. कहाँ देख पा रहे हो क्यूटिकल? यहाँ भी देख पा रहे हो और यहाँ भी देख पा रहे हो. सो इट्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑन बोथ द साइड्स. करेक्ट. You'll always remember this. This is the upper lower. Can you see upper epidermis में stomata नहीं बनाया? So that proves my point that the stomata is not more over present on the upper surface. But lower surface में stoma लिखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे तुमको गैप दिख रहा है. Can you see these two cells are different? Which are these two cells? Excellent. They are the guard cells because they are surrounding the stoma. Okay. Next up, between the upper and the lower epidermis there is a layer. This layer is called as the middle layer. मिडिल लेयर है इसीलिए इसका नाम है मेसोफिल. द वर्ड मेसो मींस मिडिल. ओके. सो मिडिल लेयर ऑफ द लीफ मतलब मेसोफिल. दिस मेसोफिल इज मेड अप ऑफ two type of tissue. The upper one or the ones near to the upper epidermis are called as parasite, which are tall, finger-like or vertical, and the second layer is spongy. As the name suggests, this spongy mesophyll will have a lot of intercellular space. Can you see these are packed? Moreover, they are packed. Actually, जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं इसको भी ऐसे पैक कर देती हूँ तो तुमको पता चलेगा there is no intercellular space. They are very much packed. Don't do that. And we have spongy mesophyll. Okay, whatever. Listen, spongy mesophyll. अब spongy अगर mesophyll है तो उसमें गैप बहुत सारा होना चाहिए, air space. Easy. Upper epidermis, lower epidermis. Middle layer called as mesophyll. Mesophyll made up of parasite mesophyll and spongy mesophyll. The uppermost layer is called as the cuticle on both the sides. Okay, and stomata is present on the lower surface. This is called as TS of leaf. Okay. तुमको तो सवाल आएगा नहीं तो मैं ही बता देती हूँ. You should be getting a question in your head that if this is TS of leaf, where is the vascular bundle? Vascular bundle, if I have to draw, I can draw it right here somewhere. अब vascular bundle बनता किससे है? Xylem of phloem. Xylem of phloem. Xylem of phloem. It's called as vascular bundle because it is made up of vascular tissue. And xylem and phloem always remains together. जब पानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो xylem तो मालूम होना चाहिए कि नहीं? कौन लेके आता है पानी ये सब सेल्स के पास? xylem. यही नहीं पता कौन लेके आ रहा है. घर बना दिया, पाइपलाइन लगाया ही नहीं. Okay. Next up, to prove my point that there is more of the stomata present on the lower surface and less on the upper surface, we are doing an experiment, and that experiment looks something like this. Yes. Anything relevant? Yes. I will ask you. ऊपर वाला भी पिंक होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा तो होता है ना. Yeah. I'm coming to it. Wait. Patience. Listen. अरे पढ़ लो, बात सुन लो मेरी.
ओके, सो द एक्सपेरिमेंट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये तो ऐसा दिखा गया है, बाकी इसको प्लांट पे करते हैं। एक पॉटेड प्लांट होगा ना, उसमें कोई भी एक लीफ होगा, उस पर क्या करो तुम, वो लीफ इंटैक्ट रहे तो लीफ को निकालना नहीं है। वो लीफ पे ऊपर और नीचे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाओ, उसके ऊपर एक स्लाइड रखो और उसको पेपर क्लिप लगा दो। कैन यू सी दैट हियर? ओके, दिस इज द अपर सरफेस, दिस इज द लोअर सरफेस। हमने यहाँ पे स्लाइड इसीलिए लगाया ताकि वो सिक्योर्ड रहे और कंडेंसेशन हो जाए तो फटाफट से वो कलर चेंज दिखेगा। तो अगर नहीं लगाया तो कंडेंसेशन नहीं होगा ना, तो देयर आर हायर चांसेस कि अगर धूप बहुत है तो वो सूख जाएगा, कलर ही चेंज नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, you keep this setup, you make this setup and keep it near the window where there is enough of sunlight exposure. What you will observe, maybe after a few hours or the next day, you will observe that the lower surface cobalt chloride paper has turned pink, but the upper surface does not. Theoretically, this is what is given to us. But we know the normal consequences क्या होता है। मैंने अभी तुमको बोला कि थोड़े से भी हल्के मॉइस्चर में वो हो जाएगा, तो टेक्निकली तो ऊपर वाला भी होना चाहिए था ना पिंक, बट क्योंकि तुमको बुक में ऐसा दिया है, यू विल स्टडी दिस। ओके, सोचो अगर मैं ये दूंगी ना तुमको तो ही तुम बता पाओगे ना दैट द अपर सरफेस हैज लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, द लोअर surface has more number of stomata. Can I give you a question? Can I ask you a question that says? Of course you will say no, like a shameless. But why in the nature does the lower surface of the leaf has more stomata than the upper? ये तो आपने बोला ना, डायरेक्ट सनलाइट में हाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट में तो जल्दी upper surface, yeah, you are correct, but you are not framing up डायरेक्टली sentence. एक्सपोज नहीं होता तो हाँ। ज़्यादा इवापोरेट नहीं। तो अगर ऐसा है ये अपर सरफेस है, इज करेक्ट, अपर सरफेस पे अगर ज्यादा हो गया स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा ना, बट बिकॉज इट इज ऑन द लोअर सरफेस तो धीरे 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 ट्रांसपिरेशन होगा। समझ आया? इस हिसाब से द प्लांट विल बी एबल टू मेंटेन इट्स वाटर कॉलम। अगर यहाँ होता तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता। तो प्लांट के अडेप्टेशन रहेगी, प्लांट को सस्टेन करना है ना एनवायरनमेंट में, इसीलिए जानबूझ के सारे यहाँ पे डाल दिए। And that's the reason. I'll give you one simple application to understand this. When you during a summery day, hot summer afternoon में अगर तुम बाहर कभी जाओगे और तुम अगर किसी पेड़ के नीचे खड़े रहोगे तो you'll feel a little cooler. क्यों? क्योंकि तुम एक पेड़ के नीचे खड़े हो ना, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो water vapor will come a little down. It saturates the air that is below the level of the leaf and branches. इसीलिए तुमको वहाँ पे जब तुम खड़े रहते हो तो ऐसा नहीं कि वो पानी बाहर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज द ट्रांसपिरेशन इज ऑकरिंग एंड वी आर इनटू दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, सो यू फील कूल। तो पहले के टाइम में इतना सारा पेड़ वेड़ लगाने बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, पर पहले के टाइम में अगर तुम देखोगे तो एक बड़ा सा ऐसा वो पंचायत का फोटो नहीं बताते, ग्राम पंचायत का, तो उसमें ऐसे दिखाते हैं ना, नीम ट्रीज, बैंगन ट्रीज, बिग पीपल ट्रीज एंड एवरीथिंग, दैट वाज फॉर ट्रांसपिरेशन। सो या दिस समराइजेस माय पॉइंट। ये देखो एंड वी समराइज दिस। This is the same diagram that I was talking. Can you see this is the root region, this is the trunk and this is the canopy. Canopy is nothing but the top of the tree. Okay? Alright. The roots are going to absorb the water. By which process? By now we should know. Osmosis. Endosmosis. This is more specific answer. Osmosis से ये लेंगे और ये कहाँ पे जाएगा पानी? You remember there was a diagram given to you? Schematic diagram. नहीं पता होगा। ये रहा है ना, तो देख पा रहे हो यहाँ पे ये रूट हेयर है और ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन है और ये जाइलम है। तो रूट के अंदर के जाइलम तक पानी चला जाएगा। वंस इट एंटर्स जाइलम इट विल गो अप इनटू द जाइलम ऑफ द स्टेम, सो इट गोज विद द कोहेजन एंड एडिशन। अभी मैंने पढ़ने बोला था ना तुमको, तो जाइलम वेसल में कोहेजन भी होता है, एडिशन भी होता है, कैपिलरी फोर्स भी होता है। इसी वजह से पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। And once it reaches here onto the leaf, it will evaporate through the stomata. समझ आया? तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अच्छी बात है, पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया तो पानी निकल जाएगा ना ज़्यादा प्लांट में से, and that is not good. Okay, that's the reason sometimes the stomata closes forcefully if there is no water in the plant. Okay, just read this and I'll go. 7:45 will start. Okay, read this and I'm going. Read this. Cuticular और reticular किया हुआ है हमने। This kind of ये वाला पढ़ो, फट। ये और अब अगर स्ट्रैंड ब्रांच
रेस्पिरेशन हो रहा है तो फिर वहाँ जब जाइलम से पानी जा रहा है तो वहाँ पे होगा ना इससे ट्रांसपिरेशन। क्या जा रहा है? जब रूट से फिर जाइलम जा रहा है तो जहाँ पे स्टेम पार्ट में हाँ हो गया। वहाँ लेंटिसेल से होता है ना? हाँ तो Yes, वहाँ पे भी correct. होगा तो पानी कम ही जाएगा ना। तो फिर स्टोमेटो में तो मतलब होता है इसीलिए पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा क्योंकि लेंटिसेल्स में से भी जा रहा है, स्टोमेटा से भी जा रहा है तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा ना। समझ आ रहा है?